السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زمین کا انتقال کیسے کروایا جاتا ہے، یا زمین کا انتقال کیا چیز ہے، ہاؤ ٹو میوٹیٹ اے لینڈ، اور اسے زمین کے انتقال کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر پر کیا طریقہ کار ہے، یا کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ سسٹم میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا پٹوار خانے میں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سو لیٹس گو، وی ول چیک ہاؤ ٹو میوٹیٹ اے لینڈ۔ زمین کا انتقال کروانا کیا ہے آخر، اور اسے اراضی ریکارڈ سینٹر یا پٹوار خانے پر کیسے عمل درآمد کروایا جاتا ہے، تو اس کو میں آپ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں پوائنٹ وائز۔ کائنڈلی آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ جی، زمین کے انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی یہ میوٹیشن آف لینڈ، کہ زمین کا ایک حقوق ملکیت سے کسی دوسرے شخص کے نام ہو جانا، مطلب کسی ایک شخص کی ملکیت دوسرے شخص کے نام کرنا، اسے کہتے ہیں میوٹیشن آف لینڈ یا زمین کا انتقال کروانا۔ اب حقوق ملکیت کے انتقال کے دو مختلف طریقہ کار ہیں۔ ویسے تو انتقالات کی کئی اقسام ہیں، وہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، لیکن فی الحال میں آج اس ٹاپک پہ صرف جو ہے توجہ دلواؤں گا آپ لوگوں کی، جو مینلی ہمارے لوگ کافی جن کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ہے ملکیت و قبضہ کے حقوق دینا، کہ آپ اپنی زمین کی ملکیت اور قبضہ دونوں ہی کسی کے نام پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جس سے آپ کا زمین کا کوئی لین دین چل رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ زمین تو آپ کے نام پہ ہو، لیکن کاشتکاری کنسٹرکشن کے لیے اس کے نام پہ ٹرانسفر کروا دینا۔ وہ بیسیکلی کوئی میوٹیشن نہیں ہوتا پراپر، ہاں آرڈرین وغیرہ کی صورت میں تو وہ ایک موٹیشن ہوتا ہے، لیکن ایک آپ سمپل سٹامپ پیپر پہ بھی، جس طرح اگر زرعی رقبے کی بات کریں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ مزارع اپنا جو چنتے ہیں کہ ملکیت آپ کی رہے گی، پر ٹھیکے پہ دیتے ہیں آپ رقبہ، تو وہ ایک سٹامپ پیپر کے تھرو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے قرضے پہ لینی ہے تو ملکیت آپ کی رہتی ہے، پر جس سے قرضہ لیا جاتا ہے وہ رقبہ آرڈرین ہو جاتا ہے، کسی بینک سے لینا ہے یا کسی پرسن سے لینا ہے۔ تو اس طرح یہ میں نے فی الحال صرف اس کو پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے کہ ملکیت و قبضہ کے حقوق دے دینا، کہ مکمل زمین ہی آپ غیر مالک ہو جائیں، اور کسی کے نام اپنا جو زمین کا وہ ٹکڑا ہے یا مکمل زمین ہے کسی کے نام لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے صرف کاشتکاری یا کنسٹرکشن کے حقوق ٹرانسفر کرنا۔ اب اس زمین کے انتقال کو اراضی ریکارڈ سینٹر پر کیسے عمل درآمد کروایا جاتا ہے، یا پٹوار خانے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے جب آپ زمین کے انتقال کے لیے کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ کے دفتر میں آپ آفس میں وزٹ کرتے ہیں یا پٹوار خانہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابھی ہم اس کی طرف، اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ جی، اراضی ریکارڈ سینٹر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے بکنگ کروا کے اپنا ٹوکن حاصل کرنا ہے۔ بکنگ کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں میں آئی بٹن پہ اس کا لنک لگا دوں گا، تو آپ اس پہ کلک کر کے طریقہ کار چیک کر سکتے ہیں کہ بکنگ کیسے کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے بکنگ نہیں کروانی اور ارجنٹ سروس حاصل کرنی ہے تو وہ ایکسپریس سروس ہے، ہر پنجاب کے ہر اراضی ریکارڈ سینٹر پہ یہ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، کہ جس سے آپ کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا اور آپ کو ٹوکن حاصل نہیں کرنا پڑتا، ڈائریکٹ جائیں۔ اس کے ایکسٹرا چارجز ہیں، آئی تھنک 5000 روپیز ایکسٹرا چارجز ہیں موٹیشن کے، اور 1500 روپیز جو ایکسٹرا چارجز ہیں فرد کے۔ تو یہ آپ کو دو سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم پٹوار خانے کی بات کریں تو اس میں کوئی ٹوکن تو نہیں لینا، لیکن بس یہ ہے کہ پٹواری کو ڈھونڈ لیں، پٹواری مل جاتا ہے تو پھر آگے وہی سٹیپ جو میں بتانے لگا ہوں وہی آپ نے فالو کرنے ہیں۔ جی، سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں کہ اصلی شناختی کارڈ، بایا اور مشتری، سیلر اور پرچیزر، یہ اپنے اصلی شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور جو دو آپ کے ساتھ گواہان جائیں گے وہ بھی اپنے اصلی شناختی کارڈ لے کے جائیں گے۔ گواہان کیوں ضروری ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو سٹیپ آئے گا میں اس میں آپ کو پراپر تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو فی الحال یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اصلی شناختی کارڈ جو ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر یا پٹواری کے پاس جاتے ہوئے بایا اور مشتری یا سیلر اور پرچیزر دونوں نے لازمی لے کے جانے ہیں۔ جی، جب ٹوکن بھی حاصل کر لیا آپ نے اور اپنا شناختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہیں، تو اب اپنی باری کا انتظار کریں گے اراضی ریکارڈ سینٹر یا کمپیوٹر سینٹر پہ، اور جیسے ہی آپ کا ٹوکن ادھر کال کیا جائے گا کسی کاؤنٹر پہ، تو جو اس کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے وہ ایس سی او ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے ایس سی او کیا ہے، اے ڈی ایل آر کیا ہے، اور ایس سی آئی کیا ہے، اور ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، وہ میں پہلے آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ادھر کلک کیجئے، آپ کو لنک میں پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں بھی اور آئی بٹن میں بھی، تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ ایس سی او کون ہے، ایس سی آئی کون ہے، اور اے ڈی ایل آر کون ہے۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔
एससीओ से इंतकाल दर्ज जब आपने करवाना होता है तो आप उसके काउंटर पर तशरीफ लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि जी ये बाया है, इसने अपना रकबा सेल करना है और मैं मुश्तरी हूँ, मैंने इसका रकबा खरीदना है। तो एससीओ आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है कि जितना रकबा फरोख्त करना है, कितना आपने रकबा फरोख्त करना है उसे बताना है, और उस ज़मीन की कीमत क्या है जितने में आप लोगों का लेन देन हुआ है वो उसे बताना है। फिर उसके बाद ये आप लाजमी एक पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपका जो लेन देन हुआ है ज़मीन का या जो डील हुई है, अगर वो सरकारी या डीसी रेट टेबल इसे कहते हैं अक्सर मार्केट में या फील्ड में, वैसे इसका नाम होता है वैल्यूएशन टेबल, अगर वैल्यूएशन टेबल या सरकारी रेट से आपका कम में जो है वो सौदा हुआ है या लेन देन हुआ है तो आपका इंतकाल दर्ज नहीं किया जाएगा। या तो आपका कम अज कम उस रेट के मुताबिक हो या उससे ऊपर हो जो आपका लेन देन हुआ है आपस में, तब आपका इंतकाल दर्ज होगा। और ये बकायदा अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो मैं आपको बात ये बता रहा हूँ। जी, फोर्थ पॉइंट है कि जब एससीओ को आपने बता दिया कि हमारा ज़मीन में कि हम ज़मीन बेचना चाह रहे हैं और ये फलां हमारे भाई हैं जो खरीद परचेज करना चाह रहे हैं, तो फिर अब एससीओ जो है वो सेलर की वेरिफिकेशन करेगा कि एससीओ पूछेगा कि उसके शजरा बताएगा, वो पूछेगा उससे कि भाई आपके वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, या बहन भाई जिनका रकबा इस पहले ही इस मौजे में इस रेवेन्यू स्टेट में मौजूद है, उनके बारे में तफसीलात आपसे मालूम करेगा। तो आपने बिल्कुल प्रोवाइड करनी है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आया वही शख्स है बाया या सेलर जो इस ज़मीन का ये टुकड़ा जो है बेचना चाह रहा है। तो इसमें आपने लाजमी कॉपरेट करना है उनसे। और इसके अलावा मजीद भी कुछ चीज़ें पूछ सकता है कि जी किस खेवड़ में से, लेट्स सपोज एक सेलर की खेवड़्स हैं 7 8 या 3 4, तो किस खेवड़ में से वो रकबा अपना सेल करना चाह रहा है, और उस खेवड़ में जो बाया है या सेलर है उसके पास कितना रकबा मौजूद है और वो कितने रकबे की ट्रांजेक्शन ये करवाना चाहता है। अगर ये वेरिफिकेशन भी आपने मुकम्मल करवा दी एससीओ से, तो फिर उसके बाद एससीओ जो है वो आपकी पहले नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये बाकायदा एसओपी का हिस्सा है अराजी रिकॉर्ड सेंटर के। तो जैसे ही वो नादरा की वेरिफिकेशन कर लेगा तो वो आपका एप्लीकेशन में जो इनकी लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन एप्लीकेशन है उसमें आपके थंब इम्प्रेशन और आपकी पिक्चर दोनों की, बाया और मुश्तरी की, महफूज करेगा और उसके बाद आपका इंतकाल दर्ज करना शुरू कर देगा। जी, पिछली स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं और ये फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि जब आप अपना इंतकाल दर्ज करवाने जाएंगे, ज़मीन का इंतकाल या म्यूटेशन ऑफ लैंड करवाना जाएंगे, तो अपने साथ 2 पत्तीदार या गवाहान लाजमी लेके जाएं। ये पत्तीदार कौन होते हैं? ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो उसी रेवेन्यू स्टेट में जिस पे आप इंतकाल करवा रहे हैं उसमें ज़मीन के मालिक हों, ताकि ये आपकी गवाही दे सकें। जो 2 पत्तीदारान है, गवाहान है, जो विटनेस हैं कि बाया और मुश्तरी को वो जानते हैं, इसलिए इनका बहुत ज़रूरी है जाना अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर, और इनके साथ भी असली शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि एससीओ से अगर आपने इंतकाल दर्ज करवा लिया है तो इसके बाद जो वो एससीओ या कंसर्न जो उस एआरसी मतलब अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जो कैशियर होगा, उसका एक अलग काउंटर होगा उसी काउंटर्स में, उस काउंटर पर जाकर आप उससे अपना इंतकाल जो आपने दर्ज करवाया है उसका फॉर्म लें और साथ में वो चालान लें जिनकी फीसेस आपने इस इंतकाल के अगेंस्ट डिपॉजिट करवानी है बैंक में। और ये हर राजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर ही पंजाब बैंक का काउंटर है, आप उधर जाके अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। मगर इसके अलावा भी कुछ इंतकालात के साथ मजीद फीसेस भी होती हैं, लाइक एफबीआर की फ़ीस है, टीएमए की फ़ीस है। तो वो क्या परसेंटेज से आपको चार्ज किया जाता है, उसकी फीसेस गवर्नमेंट के क्या शेड्यूल होता है और किस तरह आपको इंतकाल पे वो फीसेस देनी पड़ती हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी बहुत जल्द एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा बना के, और उसको आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि किस इंतकाल पर कितनी फीसेस अदा करनी होती है। अभी फिलहाल बस मैं थोड़ा सा इसको कवर कर रहा हूँ कि इंतकाल कैसे करवाया जाता है रावी रिकॉर्ड सेंटर पर या पटवारी के पास। सेम ये प्रोसीजर है कि पटवार खाने में जाके आप अपने शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं और पटवारी से आप अपना इंतकाल दर्ज करवाते हैं। वो भी इसी तरह आपका शजरा मालूम करता है और आपको जरा आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि आप वही मालिक है, तो वो भी आपका इंतकाल दर्ज कर लेता है। जी, नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने तमाम फीसेस भी डिपॉजिट करवा दी हैं बैंक में और आपके पास इंतकाल जो दर्ज किया था एससीओ ने उसका फॉर्म भी मौजूद है, तो आप डायरेक्ट अब एडीएलआर के पास उसके ऑफिस में चले जाएं। एडीएलआर जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का रेवेन्यू ऑफिसर है, उसका ऑफिस भी उसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ही मौजूद है। तो वहां जाके आप अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे, जहाँ एडीएलआर से आपसे असली शनाख्ती कार्ड आपके जो है वो डिमांड करेगा, और साथ में जो गवाहान है उनके भी असली शनाख्ती कार्ड आपसे लेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बाया से कि आपने अपना रकबा कितना सेल किया है,
और क्या पैसे ले लिए हैं, और जो मुश्तरी या परचेजर है उससे वो पूछेगा कि जी क्या आपने कब्जा ले लिया है, और किसी किस्म का दोनों पार्टी में मसला तो नहीं है, कोई बकाया जात तो लेने या देने वाले नहीं है। अगर वो दोनों पार्टी कहते हैं नहीं जी हमारा सब कुछ, पैसे भी क्लियर हो गए और कब्जा भी दे दिया गया है, ले लिया गया है, तो फिर वो गवाहान से पूछते हैं कि जी गवाह वो तस्दीक करते हैं कि वाकई जी मुश्तरी ने पैसे अदा कर दिए हैं और जो बाया है या सेलर है उसने कब्जा मुश्तरी को हैंड ओवर कर दिया है। तो उसके बेस पे जब ये गवाहियां, दोनों गवाह अपनी गवाही दे देते हैं, और उसके बाद एडीएलआर जो है वो भी आपके थंब इम्प्रेशन उसी एप्लीकेशन में लेता है और साथ में आपकी पिक्चर कैप्चर करता है उसी एप्लीकेशन में, और साथ ही आपका जो है वो इंतकाल पास कर देता है। जैसे ही आपका इंतकाल पास होता है तो आपकी लैंड जो है म्यूटेट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और आपको फौरी वो एक कॉपी जो है उस इंतकाल की उसी जगह प्रोवाइड कर देगा। जब आपके पास इंतकाल की कॉपी आ जाती है तो उस पर आप देखेंगे कि एक तरफ आपका जो बाया है जिसने लैंड अपनी जो सेल की है उसकी पूरी डिटेल होगी विद CNIC, और साथ में उसकी पिक्चर होगी, और नेक्स्ट कॉलम में 2-3 कॉलम छोड़ के आप देखेंगे कि मुश्तरी या परचेजर की डिटेल होगी जिसमें उसकी पिक्चर भी होगी, और बाकायदा रकबे का भी मेंशन किया जाएगा, कितना रकबा लिया है, कितने पैसों में लिया है, कौन कौन गवाहान थे, किस मौजे से, किस किले से, किस मुरब्बे से कितना रकबा ट्रांसफर किया गया है। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ म्यूटेशन है उसकी कॉपी को कैसे रीड और अंडरस्टैंड किया जाता है। सेम इसी तरह जिस तरह एडीएलआर रेवेन्यू ऑफिसर है राजी रिकॉर्ड सेंटर का, और जो पटवार खाने में नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो है वो है पुराने निज़ाम के रेवेन्यू ऑफिसर, तो उधर भी जाके आप इस तरह अपने बयानात देते हैं, शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं, फीस जमा करवाई होती हैं आपने, और उसके बाद जो लैंड है वो म्यूटेट हो जाती है, ज़मीन का इंतकाल आपके हक में हो जाता है। जी ये वही आगे इस पेज, सॉरी जी इस स्लाइड पे वही मैंने बताया दोबारा फिर कि एडीएलआर आपसे वहाँ पे बयान लेगा, आपके थंब इम्प्रेशन और पिक्चर को महफूज करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि जैसे ही वो एडीएलआर जो आपका इंतकाल पास करेगा या रेवेन्यू ऑफिसर आपका इंतकाल पास कर देगा तो आपको पास शुदा इंतकाल की कॉपी भी फराहम की जाएगी उसी वक्त। एडीएलआर और SCI के बारे में अगर आपने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है तो मैंने इधर आई बटन में और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक पेस्ट कर दिया उस वीडियो का, आप जाके देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो SCO, ADLR और SCI की ड्यूटी को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इस मुकम्मल प्रोसेस में इंतकाल दर्ज करवाने से लेकर इंतकाल पास करवाने तक आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आप फौरन उस अराजी रिकॉर्ड सेंटर के सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब से रब्ता करें और अपनी मुश्किल का, अपने मसले का उन्हें बताएं, तो इंशाल्लाह वो फौरन आपका मसला हल करेंगे, और ताकि आपका दोबारा से इंतकाल उस स्टेप से मूव होके आगे मुकम्मल कंप्लीशन की तरफ जा सके। जी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको जानना है कि राजी रिकॉर्ड सेंटर के बारे में तफसीली मालूमात, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनके स्टाफ के बारे में मालूमात, तो यहाँ लिखे हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने राजी रिकॉर्ड सेंटर की सर्विसेज के बारे में जो वीडियो अपलोड की है उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में पेलरा की वेबसाइट जिससे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है। तब तक के लिए अल्लाह।